आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे केंद्रीय बजट 2025 पर विशेष रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट आज संसद में पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना है। I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की भी घोषणा की। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. केंद्रीय बजट में सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. आंगनबाड़ी और पोषण की चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों को पोषित किया जाएगा। Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children. 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. वित्त मंत्री ने बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई कर नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates
are being changed across the board to benefit all taxpayers. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. Mr. Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. केंद्रीय बजट पर देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष से जुड़े लोग इसे विकासात्मक बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को नए जॉब मिले हैं। इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। झारखंड में भी केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इतनी अच्छी बजट वर्षों बाद एक साथ दिखाई पड़ा। हर क्षेत्रों को ध्यान में रखा है। जहाँ एक और महिलाओं को भी विशेष ध्यान फोकस किया है तो युवाओं के ऊपर भी ध्यान दिया है। वहीं पर छात्रों पर भी ध्यान दिया है कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र अधिक से अधिक पढ़े। फिर आईआईटी के क्षेत्र में भी कुल मिलाकर तो भारत सरकार या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है और वो सपना अब देशवासियों की सपना बन गया है। ये बजट में साफ दिखता है कि वे भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बजट को संतुलित और विकासात्मक करार दिया है। बजट 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हर आम आदमी उससे जुड़ा हुआ है, हर नागरिक उससे जुड़ा हुआ है और अपने मूलभूत आधारभूत संरचना का वो आकांक्षा होता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की मानसिकता देखने को मिल रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि उसको आम लोगों से, भारत के नागरिकों से कोई दूर दराज तक मतलब नहीं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, ये दिल्ली और बिहार के चुनाव के मद्देनजर बजट पेश किया गया है। इस बजट में कुछ भी नहीं है। 3 लाख तक 0% टैक्स लगता था, अब वो 4 लाख तक 0% लगेगा। वो 4 लाख जो टैक्स पेयर्स हैं वो 0.2% है, उससे देश का कुछ भला नहीं होना है। हमारे राज्य को क्या मिला? तो हमारे राज्य को कुछ भी नहीं मिला। मतलब जहां उनकी दोनों सरकार रहेगी उसको तो वो कुछ देंगे, जहां विपक्ष की सरकार रहेगी तो उसको नहीं देंगे। तो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है, क्योंकि बिहार में सामने चुनाव है, भाजपा की नैया डूबती नजर आ रही है, तो वो बजट के माध्यम से वो कुछ बरगलाना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, वहां किसी तरह बजट को दिखलाकर वोट कुछ मिल जाए, इस कवायद में लगी हुई है सरकार। अरे झारखंड की उतनी उपेक्षा क्यों? अगर कुछ नहीं देना था तो कम से कम 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा दबा कर बैठे हो वो तो दे दो। आपने नहीं दिया, कोई उपबंध नहीं किया बजट में, कोई प्रावधान नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की। राज्य के विभिन्न जिलों में भी बजट पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। दुमका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अंजनी शरण और इंश्योरेंस एक्सपर्ट प्रभाकर कुमार ने बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। इस बार के बजट में जो मूल स्तंभ मुझे लगता है किसी भी देश के लिए है, वो कृषि हुआ, उद्योग, स्वास्थ्य और एजुकेशन, इन चारों सेक्टर में जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है वो मेरे लिए स्वागत योग्य है। इंडस्ट्री की बात करें तो महिलाएं हैं जिनको 5 लाख तक का लोन, टर्म लोन देने की बात की गई है, तो ये सारी चीजें स्वागत योग्य है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं जोड़ना चाहूंगा कि टूरिज्म, वाटर सैनिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों चीजों को जो शामिल करके सरकार ने एकदम से किसी विकसित देशों की श्रेणी के चौखट पर अपना दस्तक दिया है और ये मेरे हिसाब से स्वागत योग्य है। इस बार का बजट बहुत ही संतुलित बजट है। MSME पे बहुत ज्यादा जोर है सरकार का। महिलाएं जो पहली बार इसमें MSME में आ रही हैं उनके लिए टर्म लोन की सीमा 5 करोड़ कर दी गई है, तो इससे महिला उद्यमियों को इसका फायदा सरकार का बहुत ही बढ़िया कदम है। बजट संतुलित। गोड्डा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रदीप अग्रवाल और व्यवसायी ललित बजाज ने बजट प्रतिक्रिया में कहा, आज का बजट जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया, उसमें जो आम लोगों के लिए टैक्स स्लैब 12 लाख तक की गई है कि जो 12 लाख तक कमाते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो एक स्वागत योग्य है और इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया बजट सभी तबकों के लोगों के लिए फायदेमंद है। इससे सभी को राहत मिलेगा, अमीर से लेकर गरीब तक सभी तबके का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया है। गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये आम बजट जो है कि निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा और अपने इस देश के किसानों के लिए भी सबसे बड़ी राहत का विषय है कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से अब उन्हें 5 लाख तक का ऋण जो न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा। जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफी फायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। आदमी के लिए फायदेमंद बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। साहिबगंज के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इससे विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। जिस प्रकार से यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार को समर्पित रहा, कृषि कल्याण को बजट ये समर्पित रहा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से जो फुटकर हमारे दुकानदार है उनको लिए, समाज के हर वर्ग के लिए यह बजट निश्चित रूप से यह उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। हजारीबाग से प्राप्त प्रतिक्रिया में लोगों ने बजट को सकारात्मक बताया है। इस बार सरकार ने मिडिल वर्ग को ध्यान में रख के कुछ इस तरह के प्रावधान किए हैं कि पूरा मध्यम वर्ग खुश है। मैं बात करूं अगर घर के रसोई का भी, तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, महंगाई नियंत्रण में होगी। और सरकार ने जो टैक्स में प्रावधान किए हैं, बजट में और कई योजनाएं ऐसी आई है, इससे हम यह कह सकते हैं कि सरकार की दूरदर्शी योजना है और इसका सीधा लाभ मध्य वर्गीय परिवार को मिलेगा, नीचे वालों को मिलेगा। अरविंद कुमार, हजारीबाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।